Association of Muslim Professional AMP, Ehsas Foundation, Police Recruitment Competitive Examination, the online class. I am Mr. Ibrahim Saudagar, resource person of history. Today I would like to deliver a lecture on history. ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो तारीख़ के ऊपर सवालात पूछे जाएंगे उस सवालात को किस तरीके से लिखा जाए और तारीख़ में कौन से जो है अहम बाब हैं उसके बारे में आज मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाह रहा हूँ. पहले तारीख़ को समझें. तारीख़ को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು पूर्व इतिहास काल, ಎರಡನೇದ್ದು पूर्व भावी इतिहास काल, ಮೂರನೇದ್ದು इतिहास काल. अगर उर्दू में अगर देखा जाए तो उर्दू में इसको माक़ब्ल तारीख़ का दौर, माक़ब्ल के बाद का तारीख़ का दौर और तारीख़ का दौर कहते हैं. पूर्व इतिहास काल ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ पूर्व इतिहास काल ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಲಿಪಿಯ ಉಗಮಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದ ಕಾಲವನ್ನು पूर्व इतिहास काल ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲವೇನಿದೆ, ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಯ ಉಗಮವಾಗಿತ್ತು, ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ದುರ್ದೈವಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಮೂರನೇದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬರವಣಿಗೆಯ ಉಗಮದ ನಂತರ ಬರೆದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಕಾಲವೇನಿದೆ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲವೆಂದು ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. prehistoric period, historic period, prehistoric, protohistoric and historic period. Likewise the 3 phases, 3 periods, that's called the periodization in history. तारीख के अंदर जो है 3 हिस्सों में तारीख को हम तकसीम करके पढ़ाई करेंगे. इस वीडियो में सिर्फ मैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ. प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी माक़ब्ल तारीख का दौर. इस तारीख के दौर को अगर देखा जाए तो रस्मुल ख़त के वजूद होने से पहले का दौर जो है उस ज़माने को माक़ब्ल तारीख का दौर कहते हैं. ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲವೇನಿದೆ ಈ ಕಾಲವನ್ನು, ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್, ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಸ್ಕೋ ಪತ್ಥರ್ ಕಾ ದೌರ್ ಬಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅನ್ನು, ಶಿಲಾಯುಗವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪೆಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್, ಎರಡನೇದು ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್, ಮೂರನೇದು नियोलिथिक एज. पेलियोलिथिक एज क़दीम पत्थर का ज़माना, मेसोलिथिक एज दरमियानी पत्थर का ज़माना, नियोलिथिक एज नया पत्थर का ज़माना जिसको कहते हैं. हಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ, मध्य ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು नव शिलायुग. हಳೆಯ शिलायुग यानी क़दीम पत्थर का ज़माना वो कौन सा दौर था? उसको अगर देखा जाए तो 5 लाख साल से शुरू होकर 10,000 साल पहले का दौर है. दरमियानी पत्थर का ज़माना मध्य शिलायुग जिसको कहते हैं या मेसोलिथिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो जो है 10,000 से 6,000 साल पहले का दौर है, BCE पीरियड है. नियोलिथिक दौर जो है 6,000 साल से 1,000 साल का दौर जो है वो नियोलिथिक पीरियड है. इन तीनों पीरियड को अगर हम देखेंगे तो ये तीनों पीरियड जो हैं बहुत ही अहम है. इस दौरान हम ये नहीं देखेंगे कि कहीं पर लिखावट, इंसान को जो है लिखना वगैरह कुछ नहीं आता था, जिसकी वजह से इंसान जो है कंप्लीटली पत्थर पर जो है अपनी पत्थर के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना. पेलियोलिथिक एज को अगर देखेंगे, पेलियोलिथिक एज ये वो दौर है
जिस दौर में इंसान शिकारी था और ग़िज़ा की तलाश करता था। इट वॉज द पीरियड ऑफ अ हंटिंग एंड फूड ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಪೆಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಕನಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥದ್ದು. हंटिंग यानी बेटेगारिके, शिकार करने के लिए उसको कुछ औजार की ज़रूरत थी, तो उसने पत्थर को ही औजार बना लिया. ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರದ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿಲೆಯ ಮೂಲಕ. ಶಿಲೆಯನ್ನೇ ಆತ ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು. The Paleolithic man used stone tools that were unpolished, rough stone tools. They were called as like hand axes, cleavers, choppers, blades, burin, scrapers. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಡ್ಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಪೆಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈಟ್ ಇದು ಶಿಲೆಯ ಒಂದು ರೂಪ. क्वार्ट्ज़ाइट जो है पत्थर का एक नमूना है. जिस पत्थर को इस इंसान ने ज़्यादा इस्तेमाल किया उसकी वजह से उसको क्वार्ट्ज़ाइट मैन कहा गया है. जैसे कि आज के दौर में कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो कंप्यूटर का दौर जो कहते हैं, तो उस तरीके से उस दौर में उस इंसान ने क्वार्ट्ज़ाइट एक पत्थर का नमूना है, उस पत्थर को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उस इंसान को क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी कहा गया है. तो हिंदुस्तान में पेलियोलिथिक एज के यानी ख़दीम पत्थर के ज़माने के कौन से प्लेसेस हैं, द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द पेलियोलिथिक एज, जैसे सोहान रिवर वैली, कश्मीर, दिद्वाना जो राजस्थान में है, भिमबेड़का जो मध्य प्रदेश में आता है. भिमबेड़का एक ऐसा प्लेस है ख़दीम ज़माने में, स्पेशली स्टोन एज पीरियड में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर रॉक कट पेंटिंग्स मिलते हैं. रॉक कट पेंटिंग्स यानी रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो है पेंटिंग किया गया है, या फिर यहाँ पर जो है रॉक आर्ट यानी पत्थर को तराश के जो है वहाँ पर जानवरों को, इंसानों को बनाया गया है. और वो ख़दीम ज़माने के, पत्थर के ज़माने के दौर के इंसान के बनाए हुए हैं भिमबेड़का. उसी तरीके से बेलान वैली है मिर्ज़ापुर यूपी में. देन अगर साउथ में आएंगे तो नर्मदा वैली है, तुंगभद्रा है, फिर नवसेना जो है महाराष्ट्र का प्लेस है. इस तरीके से बहुत से प्लेसेस आपको मिलेंगे. मगर इस दौर में इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी जो है शिकार पर गुजारता था. ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತನ ಮೂಲ ಕಸುಬೆ ಈ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆತ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ. ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೈ ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜ್ಞಾನವೂ ಆತನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾನವ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಈ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. अगर हम मेसोलिथिक एज पर आएंगे, मेसोलिथिक पीरियड पर अगर देखेंगे तो मेसोलिथिक पीरियड में इंसान किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है. मेसोलिथिक पीरियड यानी दरमियानी दौर है. दरमियानी दौर में बहुत से चेंजेस आते हैं.
इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत से बदलाव लाता है। ये बदलाव किस में आते हैं? बदलाव इंसान की ज़िंदगी में और उसके औजारों में बदलाव जो आता है, यानी चेंज। ಮಾನವನ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲವೇನಿದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ, ಆತ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಅವಶೇಷಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆತ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಆಯುಧಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದರ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲವನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಈ ಪೆಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಚೂಪಾದಂತಹ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬರ್ಚಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಬರ್ಚಿಯ ಮೂಲಕ ಆತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ पत्थर का साइज जो है वो छोटा होने की वजह से इस पीरियड को माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं. दिस पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोलिथिक पीरियड. इस ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತೇಳಿಯೂ ಕರೀತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಆತ ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸೈಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಿಸಿರುವುದನ್ನು, ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. उसी तरीके से पेलियोलिथिक एज में क्वार्ट्ज़ाइट मैन कहा गया है. क्वार्ट्ज़ाइट्स को इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था, मगर मेसोलिथिक पीरियड में जो है चाल्सीडोनी या चर्ट जिसको कहते हैं, चाल्सीडोनी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है. और यहाँ पर जो है मेसोलिथिक इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं, लांगनाज जो गुजरात में है, कैमूर जो यूपी में है, उसी तरीके से सोहागी घाट यूपी का, देन भिम्बेड़का जो मध्य प्रदेश में है, भिम्बेड़का के केव्स हैं, देन खारवार जौरा, कोथाशिया एमपी यानी मध्य प्रदेश में जो है, संभलपुर जो उड़ीसा में है, यहाँ पर जो है हम मेसोलिथिक साइट्स पाते हैं. कर्नाटक को अगर आप आएंगे तो कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के संगनकल्लू में भी जो है आपको मेसोलिथिक पीरियड का मिलेगा. पिकलीहाड़ है, देन टी नरसीपुर है. तो इस तरीके से बहुत से प्लेसेस आपको मिलेंगे. मेसोलिथिक दौर में इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चेंजेस आया है. मेसोलिथिक का आखिरी दौर जो है, उस दौर में ही इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था. ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗದ ಕೊನೆಯ ಕಾಲವೇನಿದೆ, ಆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅಂತ मवेशियों को पालना शुरू कर दिया गया. इसका मतलब जो है मेसोलिथिक के दौर की इंसान की ज़िंदगी अगर देखेंगे तो वो सिर्फ शिकारी बनकर नहीं रहा, मवेशी को पालने वाला भी बन गया. साथ ही साथ उसके आखिरी दौर में खेती करना भी जो है शुरू कर दिया. तो ये जो चेंजेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस मेसोलिथिक दौर में हम पाते हैं. नेक्स्ट जो है नियोलिथिक पीरियड. नियोलिथिक पीरियड इस पत्थर के दौर में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है. ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಕಾಲ. ಏಕೆ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು? ನವಶಿಲಾಯುಗವೇನಿದೆ, ಇದು ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲ. इंसान की ज़िंदगी में जो है बहुत सी अहम जो चेंजेस आए हैं, तो वो कहाँ से आए हैं? नियोलिथिक एज से. नया पत्थर का दौर जो है वहाँ से आए.
इस पीरियड में अगर इंसान की ज़िंदगी को हम देखेंगे तो दिस पीरियड इज़ नथिंग बट द फूड प्रोड्यूसिंग पीरियड। इंसान ने जो है फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसके पिछले दौर में जो है इंसान फूड गैदरर था, यानी ग़िज़ा को जो है वो खुद उगाता नहीं था, ग़िज़ा की तलाश में भटकता था और ग़िज़ा को खोजता था। इस दौर में नियोलिथिक दौर जो है, नया पत्थर का दौर या नया पत्थर का ज़माना, इस दौर में इंसान ने ग़िज़ा को उगाना शुरू कर दिया, यानी खेती शुरू हो गई। अब खेती शुरू हो गई, खेती के साथ इंसान को जो है एक जगह पर बसेरा शुरू हो गया। अपनी खेती की हिफाजत के लिए उसने उसी के बगल में जो है घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। तो इस दौर में खेती शुरू हो गई तो भी जो है पत्थर का इस्तेमाल इसने नहीं छोड़ा था, शिकार करना नहीं छोड़ा था। साथ ही साथ इस दौर में आग को भी जो है तलाश लिया गया था, आग का इस्तेमाल भी जानता था। इस दौर में पॉटरी, कन्नड़ में जिसको मडिके कहते हैं, मडिके कुड़ी की गड़ा तैयारी की, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल भी जो है शुरू हो गया। जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज़ द इन्वेंशन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं, यानी ज़रूरत जो है इंसान को कुछ नया खोजने के लिए मजबूर कर देती है। उस तरीके से अपनी ग़िज़ा की हिफाजत के लिए एक जगह पर जो है बसेरा करना, अपनी ग़िज़ा को स्टोर करके रखने के लिए, जमा करके रखने के लिए जो है मिट्टी के बर्तन को बनाना, अपनी ग़िज़ा को जो है पका कर खाने के लिए जो है मिट्टी के बर्तन को बनाना शुरू किया। तो नियोलिथिक साइट्स जो है, इम्पोर्टेंट साइट्स, बुर्ज होम है, गुफकर्ल जो जम्मू कश्मीर में आता है। कर्नाटक को अगर आएँ तो संगनकल्लू है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है और पिकलीहाड़ है, उसी के साथ बूदिहाड़ है, टक्कलकोटा है और पेरियमपल्ली तमिलनाडु का, उतनूर आंध्र प्रदेश का। ये सब जो है अहम साइट्स हैं। ये साइट्स यानी उस दौर के सनती इलाके हैं, सनती इलाके। इस दौर में इंसान ने पत्थर को बहुत ही पॉलिश करके जो है इस्तेमाल किया। द नियोलिथिक मैन हैज़ यूज्ड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। पॉटरी का यूज़, और पॉटरी जो बनाई है यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए व्हील मेड पॉटरीज, यानी जो कुंभार का चक्कर होता है, चक्कर के ऊपर जो है रखकर मिट्टी के बर्तन बनाना, वो जो है शुरू हो गया। और इसी दौर में सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का शुरुआती दौर कहा जाता है, यानी खुद पर निर्भर होकर इंसान जो है एक इलाके में बसेरा करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से गांव जो है वजूद में आए। गांव का वजूद जो हुआ है इसी दौर में हुआ है। ये चंद बातें जो हैं ये पत्थर के दौर के थे, जिसमें मैंने पैलियोलिथिक पीरियड, क़दीम पत्थर का ज़माना, मेसोलिथिक पीरियड, दरमियानी पत्थर का ज़माना और नियोलिथिक एज, नया पत्थर का ज़माना, इसके बारे में मैंने कुछ अपनी नॉलेज को अपने शेयर किया है। आगे जो है बाकी के चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में मैं भेजूँगा। थैंक यू।